افغانستان میں امن کے لیے امریکی عہدیدار ایک بار پھر متحرک، حاصل کیا ہوگا؟ اور ہماری خصوصی سیریز چیلنج پلاسٹک میں آج بایو ڈیگریڈیبل پلاسٹک۔ امریکی کانگریس کے اراکین نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر کو دنیا کا خطرناک ترین علاقہ قرار دیا ہے۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویو 360 کے ساتھ میں ہوں سارا زمان۔ امریکی کانگریس کی امور خارجہ سے متعلق ذیلی کمیٹی کے بعض ارکان نے بھارت کے زیر انتظام کشمیر کو انسانی حقوق کی پامالیوں کے لحاظ سے دنیا کا خطرناک ترین علاقہ قرار دیا ہے۔ جنوبی ایشیا میں انسانی حقوق کی صورتحال پر کل ایک سماعت کے دوران اراکین کمیٹی نے اعلیٰ امریکی سفارتکار ایلس ویلز سے کشمیر کے معاملے پہ امریکی پالیسی کے بارے میں سخت سوالات بھی کیے۔ تفصیلات شہناز نفیس سے۔ رکنی کانگریس الہان عمر کے اس سوال کے جواب میں کہ امریکی انتظامیہ کشمیر میں حالات معمول پر لانے کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے اور اس سے کس حد تک باخبر ہے، ایلس ویلز کا کہنا تھا کہ امریکی حکومت کو کشمیر کی موجودہ صورتحال پر تشویش ہے اور وہ اس مسئلے کو بھارتی حکومت کے ساتھ اٹھا چکی ہے۔ ہمارے علم میں ہے کہ وہاں 4000 کشمیری نوجوان گرفتار ہیں۔ کشمیر کے مسئلے پر بھارتی حکومت سے بات ہوئی ہے۔ امریکہ کشمیر کے مسئلے کا قریب سے جائزہ لے رہا ہے اور وہاں کی صورتحال کے پیش نظر امریکی شہریوں کو کشمیر جانے سے روک دیا گیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت شملہ معاہدے کے تحت بات چیت سے اس مسئلے کو حل کریں۔ سماعت میں بڑی تعداد میں کشمیر کمیونٹی کے لوگ بھی موجود تھے۔ سماعت کے بعد وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے ان کشمیریوں نے ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا۔ Secretary Wells, I think, the thing with her is that she is confined by her office, like in the sense that she can only say certain things. Makes me emotional, but مجھے ایک ray of hope ملی ہے کہ وہاں جو sacrifices ہو رہی ہیں they are not going to go waste. میں نہیں سہمت ہوں جو اس وقت پالیسی ہے امریکہ کی towards India and towards کشمیر۔ ایک تاریخی ہیئرنگ تھی آج، کیونکہ بڑی تعداد میں کانگریس مین جو آ گئے یہاں پر سب متفق تھے اس بات پر کہ کشمیر پر جو زیادتی ہوئی ہے اس سے مزید حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ امریکی کانگریس کی اس سماعت میں صرف بھارت کے زیر انتظام کشمیر ہی نہیں بلکہ جنوب ایشیا کے کئی حصوں میں انسانی حقوق کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ مثال کے طور پر پاکستان کے صوبہ سندھ میں ہندوؤں، سری لنکا میں تامل اور برما میں روہنگیا مسلمانوں کی صورتحال پر غور کیا گیا۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ اور اب چلتے ہیں پاکستان کی مغربی سرحد کی جانب، افغانستان، جہاں طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیل زاد ایک بار پھر متحرک ہو گئے ہیں اور یورپی اتحادیوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر اور ان کے علاوہ ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی کی قیادت میں ایک وفد نے حال ہی میں کابل کا دورہ بھی کیا ہے۔ افغان طالبان کا کہنا ہے کہ انٹرا افغان مذاکرات کا اگلا دور جلد چین میں ہوگا، لیکن کسی بھی امن معاہدے کے لیے ضروری ہے کہ کابل میں ایک مستحکم حکومت موجود ہو، جبکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ستمبر میں ہونے والے صدارتی انتخابات کے نتائج تو اب تک سامنے نہیں آئے۔ پیش ہے ندیم یعقوب کی رپورٹ۔ ایسے میں جب واشنگٹن میں تمام تر توجہ شام اور ترکی کے معاملات پر ہے، امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی کی سربراہی میں کانگریس کے اراکین کے ایک وفد نے کابل کا دورہ کیا ہے۔ ایوان نمائندگان کے رکن مائک والٹس نے، جو اس وفد کا حصہ نہیں تھے، وائس آف امریکہ کو بتایا کہ صدارتی انتخابات کے بعد افغانستان میں سیاسی استحکام بے حد ضروری ہے۔ ہمارے لیے جمہوریت کی حمایت اہم ہے۔ میں وہاں جمہوری عمل کی حمایت کرتا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ افغانستان کے تمام لیڈرز اپنے ذاتی مفادات کی بجائے ملک کے مستقبل کو ذہن میں رکھیں۔ افغانستان میں صدارتی انتخابات کے پس منظر میں یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ آیا صدر اور چیف ایگزیکٹو کے درمیان اقتدار میں شراکت داری کا سسٹم آگے چل سکے گا یا نہیں۔ یہاں عمومی خیال یہ ہے کہ دو افراد کی قیادت والی حکومت کامیاب نہیں ہو سکی۔ میرا خیال ہے کہ یہاں کوئی بھی اسے جاری رکھنا نہیں چاہتا۔ مسئلہ تب ہوگا اگر انتخابی نتائج دونوں فریقوں کو پہلے کی طرح تقسیم کر دیتے ہیں اور نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوتے۔ دوسری جانب امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیل زاد طالبان کے ساتھ مذاکرات کے سلسلے کو دوبارہ بحال کرنے کی کوشش میں اپنے یورپی اتحادیوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔
उनकी ख्वाहिश है कि अफगान हुकूमत जल्द तालिबान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात करे। एक दफा हम इंतखाबी मरहले से निकल जाएं और एक मुंतखब हुकूमत बन जाए तो मुसालती अमल उसकी क़यादत में होना चाहिए और अफगान फ़रीक़ैन मुसालती अमल को आगे बढ़ाने का मंसूबा अमरीका के सामने रखेंगे। तालिबान अभी तक अफगान हुकूमत से बातचीत पर रजामंद नहीं, मगर कांग्रेस के वफ्द के दौरे के पस मंजर में माइक वॉल्ट्स कहते हैं कि अफगानिस्तान के लिए पैगाम ये है कि अमरीका का मुफाद इसमें है कि वहाँ इस्तेहकाम हो और जब तक अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस अपने तौर पर अमन कायम रखने के काबिल नहीं, अमरीका उनके साथ खड़ा रहेगा। नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। इस हफ्ते अफगानिस्तान में तैनात अमरीकी फौज के कमांडर जनरल ऑस्टिन स्कॉट मिलर ने बताया कि पिछले एक साल के दौरान अमरीका ने बदलती हुई सूरत हाल के मुताबिक अफगानिस्तान में मौजूद अपनी फौज की तादाद में खामोशी से 2000 की कमी कर दी, जिसके बाद अब वहां तकरीबन 12000 अमरीकी फौजी रह गए। जनरल मिलर का कहना है कि इन फौजियों की तादाद 8000 तक भी अगर आ जाती है तब भी उन्हें अपने मिशन की तकमील में कोई मुश्किल नहीं होगी। इस तब्दीली का अमन कोशिशों पर कैसा असर पड़ सकता है, इस बारे में हम बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस से मुंसलिक तज्जियाकार जॉनी वॉल्ट से। जॉनी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन व्यू 360. So the US troops have quietly been reduced. Taliban always wanted a troop reduction anyway. So could the Taliban be getting something that they always wanted without even a peace deal? Well, I think the number of troops who've left already is pretty small and fits in the category of streamlining the presence that's already there for efficiency's sake. What really matters is whether the larger presence leaves entirely, and the Taliban would certainly be getting something that they want for free if all US troops left. That doesn't appear to be what we're looking at now. I think even with a far smaller number of troops than are currently in Afghanistan, the United States would pretty well be able to prevent the Taliban from taking Kabul or otherwise winning the war. And that's what gives leverage to get peace talks started and to kind of point the Taliban toward a political settlement. Alright, so Johnny Walsh कहते हैं कि जहाँ तक अमेरिका के फौजियों की तादाद में कमी की बात है तो जो 2000 की कमी की गई है ये बहुत बड़ी नहीं है, थोड़ी सी ही है। और ज़्यादा बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि क्या जो ओवरऑल जो बड़ी तादाद है अमेरिकी फौजियों की जिसका इनखला तालिबान चाहते हैं, क्या वो किसी वक्त पे हो पाता है या नहीं। और उसकी तादाद में जॉनी वॉल्श कहते हैं कि किसी बड़ी तब्दीली का फ़िलहाल कोई इम्कान नज़र नहीं आता और जो फ़ौजी अब मौजूद हैं वो कम अज़ कम दारुल हुकूमत को और इर्द गिर्द के इलाकों को सिक्योर करने के लिए काफ़ी हैं और वही ऐसा दबाव है जो तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर ला भी सकता है। So, Johnny, we saw that President Trump called off the talk saying that the Taliban were not giving up violence. And we know that they still haven't given up violence. So what do you think could be the motivation behind Ambassador Khalilzad's renewed efforts to get the peace process back on track? Well, in the first place, the purpose of peace talks is to get the other side to give up violence. I would observe that in virtually every conflict where an insurgency is fighting a government, the insurgency is the party that is reluctant to do a ceasefire early on because violence is their entire source of leverage. So I don't find it very plausible that the Taliban would agree to a ceasefire now, but I do think, and they have said, that that is the first major topic for discussion if Afghans sit down to formally negotiate with each other. And I think it's plausible that a national ceasefire, which is so important in Afghanistan, could be one of the things that comes out of intra-Afghan negotiations. And that is the whole reason it's so important to start them. Alright, so जॉनी वॉल्श कहते हैं कि तालिबान का तशद्दुद जिस तरह से हमने बात की कि सदर ट्रंप ने इस वजह से मुज़ाकरात रोक दिए थे कि उनका कहना था कि तालिबान अब भी तशद्दुद के रास्ते पर ही हैं। तो जॉनी वॉल्श कहते हैं कि तशद्दुद कम करना ही मुज़ाकरात का मकसद भी है। अब जब दोबारा अगर मुज़ाकरात शुरू करने की कोशिश की जा रही है तो उसका मकसद यही है कि किसी किस्म की जंगबंदी हासिल की जाए, क्योंकि जो अस्करियत पसंद होते हैं वो कभी भी पहले जंगबंदी नहीं करना चाहते, वो अपने वायलेंस को ही लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन जो इंट्रा अफगान डायलॉग जिसकी बात हो रही है उसमें एक बहुत अहम पेशरफ्त ये होगी कि अगर एक नेशनल लेवल पे जंगबंदी हो जाती है। So, Johnny, President Trump had, as we know, abruptly called off those peace talks. His policy in Syria regarding the Kurds is also being strongly criticized. Is the Trump administration a reliable deal maker at this point? Well, there's been a debate in Washington since Trump called off the Afghanistan talks about whether this meant whether they were dead entirely or whether this reflected his particular negotiating style. And I think looking around at how he's conducted the Iran negotiations, the North Korea talks,
it's more likely the latter, in that I think it's likely he does want to find a deal if one can be had. And in the Afghanistan case specifically, I would point to Mark Esper, the Secretary of Defense, making a pretty clear statement that the administration is still very much interested in a peace agreement, and the fact that Ambassador Khalilzad has held one meeting with the Taliban already, reportedly, and met in the last few days with all the key international players. I think there's still the chance of a deal. It just has to be a good one. And I think Trump's decision showed that the United States is not going to support just anything that the Taliban offer. ऑलराइट सो जहाँ तक इस बात का सवाल है कि क्या ट्रम्प इंतजामिया एक रिलायबल डील मेकर है, क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है, तो जॉनी वॉल्श कहते हैं कि ये बहस ज़रूर वाशिंगटन में गर्म है, और तब से गर्म है जब से अफगानिस्तान के तालिबान के साथ मुज़ाकरात सदर ट्रम्प ने रोक दिए थे। तो या तो ये सदर का अंदाज़ भी हो सकता है कि वो इस तरीके से प्रेशर डाल के डील करना चाहते हैं, लेकिन जॉनी वॉल्श कहते हैं कि अमेरिका के जो वज़ीर दिफा हैं मार्क एस्पर, उन्होंने अफगान हुकूमत को यही यकीन दिलाया है कि वो उनके साथ हैं, वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं। और उसके अलावा एम्बेसडर खलीलजाद की भी जो मुलाकात एक और हुई है तालिबान के साथ, उसका भी मकसद यही है कि एक डील हो, लेकिन हो सकता है कि सदर ट्रम्प ने टॉक से जो हाथ खींचा था उसकी वजह यह हो कि वो कोई ऐसा डील नहीं करना चाहते सिर्फ जो डील की खातिर सिर्फ हो और उसमें वो चीज़ें भी हो जाएं जो तालिबान सिर्फ चाहते हैं, लेकिन ऐसा डील ना हो जिसमें अमेरिका का और अफगानिस्तान का वसीतर मफाद हो। जॉनी वॉल्श, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, वी रियली अप्रिशिएट इट। यूनाइटेड स्टेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ पीस से मुंसलिक तज्ज़ियाकार जॉनी वॉल्श हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया। Thank you. दुनिया भर से अहम खबरों के लिए आप जब चाहें आ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। facebook.com/BA उर्दू के पेज पे आपको पाकिस्तान के अंदर और बाहर पेश आने वाले अहम वाक़यात की तफसील के साथ साथ दिलचस्प वीडियोज़ और इंटरव्यूज़ भी मिलेंगे। ट्विटर पे हमारा हैंडल है @UrduVOA। अमरीकी दारुल-हुकूमत वाशिंगटन डीसी में तकरीबन 400 थिंक टैंक्स या तहकीकी इदारे हैं और उनके बाद तज्ज़ियाकार आप हमारे शो में देखते ही रहते हैं। इन थिंक टैंक्स में दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के साथ साथ पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले तज्ज़ियाकार और माहिरीन भी काम कर रहे हैं। पाकिस्तान से मुताल्लिक अमरीकी पॉलिसियों को वो किस हद तक मुतासर कर सकते हैं, इस बारे में आज मालूमात लेकर आई हैं शहनाज नफीस। अमरीकी थिंक टैंक्स में ऐसे लोगों की तादाद कितनी है जिनकी जड़ें पाकिस्तान में हैं, इसका अंदाज़ा करना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर है। ताहम कई अमरीकी थिंक टैंक्स में आपको पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले स्कॉलर्स या रिसर्चर्स नज़र आते हैं और इनमें बेशतर तादाद उन तज्ज़ियाकारों की है जिनकी पैदाइश अमेरिका में नहीं हुई। इन पाकिस्तानियों ने थिंक टैंक्स में काम करने को तरजीह क्यों दी? उसकी बुनियादी वजह ये थी कि मैं ऑलरेडी इस्लामाबाद में एक थिंक टैंक से मुंसलिक था, जिन्ना इंस्टीट्यूट में। मैं उसका डायरेक्टर था, उसके बाद मैं उसका सीनियर फेलो था, और चूँकि मेरा वो शोबा ही काम और रोज़ी रोटी ही रिपोर्टें लिखने और थिंक टैंक वाले काम करने से ही थी, तो इसलिए वो एक नेचुरल यहाँ पे जगह मिल गई। मुझे पॉलिसी, वैसे भी इन जनरल मुझे पॉलिसी काम पसंद है कि हुकूमत जो है कैसी अपनी पॉलिसीज़ बनाती हैं और कैसे इंटरेक्ट करती है इंटरनेशनल कम्युनिटी से। तो केटो से रहने से मुझे इस बात का फ़ायदा है कि मैं देख भी सकती हूँ पॉलिसी को, और अगर चाहूँ इन्फ्लुएंस भी कर सकती हूँ इन द सेंस, ख़ास तौर पे अगर कोई पूछे साउथ एशिया के बारे में, जनूबी एशिया के बारे में, तो मैं जैसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकती हूँ। अगर ये थिंक टैंक्स वाकई अमरीकी पॉलिसी साजी के अमल पर असरअंदाज होते हैं तो इनमें मौजूद पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले रिसर्चर्स अपनी आबाई मुल्क के मुफादात को कहाँ तक फ़रोग़ दे सकते हैं। ग्लोबल परफॉर्मेंस और पॉलिटिक्स नामी थिंक टैंक से मुंसलिक रज़ा रोमी का कहना है कि थिंक टैंक्स में अपने मुल्क के मुफादात को फ़रोग़ देना कदरे मुश्किल है। जो पाकिस्तानी होते हैं थिंक टैंक्स में, वो एक अपनी अच्छी इन्फॉर्म्ड राय दे सकते हैं, वो यहाँ पे सोच बदल सकते हैं, और जो मुख्तलिफ पॉलिसी की डिटेल्स होती हैं उस पर असरअंदाज हो सकते हैं। सहर खान कहती है कि उनको उनके काम की वजह से कभी पाकिस्तान की हामी तो कभी पाकिस्तान की मुखालिफ ख्याल किया जाता है। ताहम वो कहती हैं कि वो अपने कई रिसर्च वर्क में पाकिस्तान पर लगाए गए इल्ज़ामात को दस्तयाब सबूतों की बुनियाद पर गलत साबित कर चुकी हैं। मैंने एक पॉलिसी रिपोर्ट लिखी थी केटो इंस्टीट्यूट के लिए, वो सितंबर के 2018 में निकली थी। तो उस रिपोर्ट में मैंने ये कहा था कि पाकिस्तान के ऊपर बहुत इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि वो दहशतगर्दों की मदद करते हैं, और वो यानी खुलेआम करते हैं, और सिर्फ खुलेआम नहीं करते बल्कि उनको रोकने की कोशिश नहीं करते। तो मेरी रिपोर्ट जो है उस बात पे फोकस कर रही थी कि पाकिस्तान ने कोशिश भी की है कि इन दहशतगर्दों को रोका जाए।
अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी कम्युनिटी में सबसे ज्यादा मकबूल शोबे सेल्स एंड ट्रांसपोर्ट, इंजीनियरिंग, IT और डॉक्टरी के हैं। ताहम अमरीकी थिंक टैंक्स में काम करने वाले पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए वाशिंगटन के कॉरिडोर्स में अपने मौक़िफ़ और मौजूदगी का एहसास दिलवाने की ज़रूरत इस वक्त किसी भी मुल्क से ज़्यादा है। शहनाज नफीस, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। और अब हमारी खुसूसी सीरीज चैलेंज प्लास्टिक, जिसमें आज हम लेके आए हैं बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, यानी ऐसा प्लास्टिक जो वक्त के साथ माहौल में तहलील हो जाता है। पाकिस्तान में पॉलीथीन के लिफाफों की जगह बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के लिफाफे मुतारिफ कराने की कोशिश तो की जा रही है। पेशावर से उमर फारूक आज बता रहे हैं कि ये मंसूबा कामयाब क्यों नहीं हो रहा। पाकिस्तान में महकमा बराए माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक सालाना तकरीबन 55 अरब पॉलीथीन बैग इस्तेमाल किए जाते हैं। वजारत माहौलियाती तब्दीली का कहना है कि प्लास्टिक के लिफाफों का इस्तेमाल सालाना 15% बढ़ रहा है। पॉलीथीन के लिफाफों का एक मुतबादिल है ऐसे प्लास्टिक से बने लिफाफे जो वक्त के साथ मिट्टी में मिट्टी हो जाता है, यानी बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक। इसकी तैयारी में D2W नामी केमिकल इस्तेमाल होता है, जिसकी छोटी सी मिकदार से पॉलीथीन की उम्र सदियों से कम होकर महज चंद माह रह जाती है। 1 किलो D2W की कीमत 800 से 850 रुपए मुकर्रर की गई है। पेशावर में प्लास्टिक बैग्स बनाने वालों का कहना है कि पाकिस्तान में D2W पर एक कंपनी की इजारादारी प्लास्टिक के आम लिफाफों के खात्मे की राह में एक रुकावट बन रही है। एक दफा आप उनसे खरीदारी करते हैं, नेक्स्ट टाइम करते हैं, फिर वो 100 रुपए, कभी केजी के पीछे 25 रुपए, कभी 30 रुपए वो बढ़ा लेते हैं रेट को भी। एक ही बंदे के पास है जो हमारा राब्ता है और किसी के साथ नहीं है। पाकिस्तान में D2W केमिकल की डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस डायनामिक प्राइवेट लिमिटेड नामी कंपनी के पास है। कंपनी के ओहदेदार कीमतों में इजाफे की तरदीद करते हैं। उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि केमिकल 800 रुपए किलो पर फरोख्त किया जा रहा है। अब्दुल हफीज जैसे फैक्ट्री मालिकान का कहना है कि ईरान और पाकिस्तान के छोटे शहरों से नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक अब भी मार्केट में आ रहा है, जिससे बायोडिग्रेडेबल लिफाफों के लिए जगह बनाना मुश्किल हो रहा है। पेशावर की जिलाई इंतजामिया के मुताबिक वो शहर में प्लास्टिक बैग्स की पैदावार रोकने के लिए सख्त इकदाम कर रही है। हमने फैक्ट्रीज और होलसेलर्स की यूनिट्स को सील करना शुरू कर दिया है। ट्रेडर्स से हमने माल जो इनका प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स हैं वो उठाने शुरू कर दिए। तो ये हमारे कोएसिव मेजर्स हैं, और जब तक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की तरफ से क्लियरेंस नहीं आती कि यस ये यूनिट अब इस तरह का प्रोडक्ट बनाएगा, उनकी तरफ से अंडरटेकिंग नहीं आती, तब तक हम डिसील नहीं करते कारखानों को। पेशावर के सदर नामी इलाके में जनरल स्टोर पर काम करने वाले तारिक रहीम कहते हैं कि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के थैलों के मयार में बेहतरी की भी जरूरत है। ये शॉपर है, देखिए जी, ये सस्ते है, वो दूसरे से सस्ते है, लेकिन बड़े कमज़ोर है। फ़ायदा ये हुआ कि गाहक को मैं पहले 1 देता हूँ, अब 2 या 3 देता हूँ। नुकसान है इसमें मेरा। पाकिस्तान में प्लास्टिक के एक बार काबिल इस्तेमाल लिफाफे ख़त्म करने के लिए 10 साल से मुख्तलिफ सतह पर कोशिशें की जा रही है। इस वक्त मुल्क में एक बार इस्तेमाल के काबिल पॉलीथीन बैग्स बनाने के 8000 रजिस्टर्ड कारखाने हैं, जबकि आम प्लास्टिक के लिफाफों की योमिया पैदावार 500 किलोग्राम है। उमर फारूक, वॉइस ऑफ अमेरिका, पेशावर। प्लास्टिक के आम लिफाफों का इस्तेमाल खत्म करने की कोशिशों पर पाकिस्तान में प्लास्टिक इंडस्ट्री से मुंसलिक अफराद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। उस पर रिपोर्ट आप देख सकेंगे चैलेंज प्लास्टिक में कल शाम। चलें इधर इधर थोड़ा सा थोड़ा इधर हो जाए। हम सब अपने आप में कहाँ परफेक्ट हैं? ये जो हमारे आसपास के लोग हैं ना, वजीफा का जब उसके बाजू प्रोस्थेटिक्स लगा, यही एक दूसरे को बेहतर बनाते हैं और फिर मिलकर एक बेहतर मुल्क बनाते हैं हम। लेकिन मुल्क भी अपने आप में कहाँ परफेक्ट होते हैं? तो दुनिया के दूसरे मुल्क एक दूसरे के लिए हाथ बढ़ाते हैं। ऐसे ही तो एक बेहतर दुनिया बनाते हैं हम। One teacher, one book and one pen. और दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान इसीलिए तो दिखाते हैं। नए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस एग्जीबिशंस के डिजाइनर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत का वरना अपने आप में हम सब कहाँ परफेक्ट हैं? ये मैं हूँ, आप
मेजबान खालिद हमीद। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। पाकिस्तान में बहुत से अफगान महाजिर बच्चे अपना दिन मेहनत मजदूरी करते गुजारते हैं, लेकिन जिनके हाथों में अमूमन कचरे की बोरी होती है, कोयटा की हलीमा ने उन्हें किताब और पेंसिल थमाने का बीड़ा उठाया और किसी की मदद का इंतजार किए बगैर अपने ही घर में एक कमरे का स्कूल खोल लिया। 4 साल से जारी उनकी इस कोशिश के बारे में मजीद देखते हैं मुर्तजा जहरी की इस रिपोर्ट में। 4 साल पहले अलीमा ने अपने इलाके के गरीब बच्चों को पढ़ाने का फैसला किया। छोटा ही सही, आज इनका कम्युनिटी स्कूल अपनी मदद आपके तहत कामयाबी से चल रहा है। मेरे पास औरतें जो सिलाई के लिए आती थी, मैं कपड़े सिलाई करती थी, फिर उनके साथ बच्चे आते थे, किसी के साथ 4-5 ज़्यादातर बच्चे। मैं इनको बोलती स्कूल क्यों नहीं जाते? बच्चे कहते यहाँ पे कोई बॉयज़ का स्कूल तो है नहीं, तो हम कहाँ भेजें? फिर मैंने कुछ बच्चों से शुरू किया, घर में जैसे ट्यूशन टाइप मैंने स्टार्ट किया। कोयटा के मशरकी बाईपास पर कायम इस कम्युनिटी स्कूल में 120 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। इनमें तकरीबन 100 बच्चे अफगान पनाह गुज़ीन हैं, जो इससे पहले या तो कचरा चुनते थे या कहीं काम करते थे। ऐसा ही एक बच्चा अब्दुल्ला, जो पहले दर्जी की दुकान में काम करता था, लेकिन अब साथ कम्युनिटी स्कूल में पढ़ भी रहा है। सुबह जब आता है नजरा पढ़ता है कुरान पाक, उसके बाद फिर काम लिखता है, फिर इधर वो पढ़ता है, इंग्लिश का काम पढ़ता है। मैं अपना भाई का दुकान जाता हूँ, अपना भाई उधर ही दर्जी का काम करता हूँ। 8 बजे छुट्टी होता है, घर हम आता है, उधर ही अपना होमवर्क करता हूँ, स्कूल का काम याद करता हूँ। कम्युनिटी स्कूल में बच्चों को बैग और किताबों की फराहमी के लिए हर माह मोहल्ले में चंदा जमा किया जाता है। हलीमा की कोशिश है कि वो इन बच्चों को स्कूल का माहौल दे सके। अभी भी ये स्कूल का माहौल यानी थोड़ा बहुत है, मगर जैसे मैं हूँ मैं इससे यानी वो नहीं हूँ, मुतमईन नहीं हूँ कि ये स्कूल, अभी मैं इनको ब्रेक नहीं दे सकती हूँ, मैं इनको कोई एक्टिविटी नहीं करा सकती हूँ। हलीमा इन बच्चों के लिए बाकायदा स्कूल की इमारत और दीगर सहूलतों के लिए हुकूमती दरवाजे भी खटखटाती रहती हैं। वो पुर उम्मीद हैं कि इस स्कूल से पढ़ने वाले बच्चों का मुस्तकबिल जरूर रोशन होगा। मुर्तजा जहरी, वॉइस ऑफ अमेरिका, कोयटा। कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो पढ़ने वालों को जहन पे बहुत भारी महसूस होती हैं, लेकिन गुलकारा रियाना ने अपनी सवाने हयात शाये की है जो उठाने में ही काफ़ी भारी है, तकरीबन 7 किलोग्राम वजनी। 504 सफ़ात पर मुश्तमिल इस नई किताब में 1000 से ज़्यादा तस्वीर हैं, जिनमें फैंस रियाना के बचपन से लेकर एक कामयाब फनकारा बनने तक का सफ़र देख सकते हैं और ऐसे बहुत से लम्हात भी जो रियाना की ज़ाती ज़िंदगी पर रोशनी डालते हैं। ये किताब मुरतब करने में उन्हें 5 साल लगे और रियाना फाइनल प्रोडक्ट से काफ़ी खुश हैं। मैं बेहद खुश हूँ। मैं इस पर बहुत अरसे से काम कर रही थी। इसमें बहुत भारी तो होना था। मैं तो इसे उठाने वालों पर, खरीदने वालों पर रहम कर रही थी, लेकिन आप फैंस की खातिर अपनी बहुत सी यादें शामिल करना चाहते हैं। रियाना कहती कि जैसे जैसे उनकी कामयाबियां बढ़ती गई, उनकी किताब का साइज और वजन भी बढ़ता गया। इसी के साथ खत्म होता है हमारा आज का व्यू 360। facebook.com/VO उर्दू के पेज पे आइए, जहां आपको ताज़ा तरीन खबरें और बहुत सी दिलचस्प वीडियोस और इंटरव्यूज मिलेंगे। इसके अलावा ट्विटर पे हमारा हैंडल है @UrduVOA और इंस्टाग्राम पे आप उर्दू VOA को फॉलो कर सकते हैं बहुत सी दिलचस्प वीडियोस और तस्वीर के लिए। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।